Welcome to another exciting episode of Upstart powered by Tech Hub and HR Knowledge Cafe. Today we're joined by an exceptional guest who is changing the tax game in Pakistan. He's the founder and CEO of TaxNerd Pakistan. He's a standing committee member of Lahore Chamber of Commerce and Industry, an executive board member of Pakistan E-Commerce Association, and a proud recipient of Excellence in E-Commerce Taxation and Financial Solutions Award. I'm your host. My name is Adika Bukhari. Let's discuss it further straight from the man himself. Welcome to the show, Shoaib. Thank you so much, Hadika. Thank you for having me here. इससे पहले कि हम टेकनेट के बारे में बात करना शुरू करें, लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी फर्स्ट. आप प्लीज़ हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं. I'm a founder and CEO of TaxNerd and इसके अलावा Taste Foods and The Pink Rocks के नाम से मेरे 2 e-commerce stores भी हैं. So I'm into a diversified environment for business where I own a startup plus I also own some e-commerce stores. Moving forward, I'm also the member of Pakistan E-Commerce Association and I'm also a committee member of Lahore Chamber of Commerce and Industries Committee for IT Infrastructure Development. Talking about some more information on me, I would say a founder, a hustler, and who's hustling each and every day of his life. These are just some of your achievements, and the list will go on and on and on. Of course, it will go on, and during the whole session, there will be much more about me. Well, very first thing when I moved back to Pakistan during COVID और पाकिस्तान आने के बाद जब मैंने अपनी लीगल obligations को fulfill करते हुए first time tax return submit करवाई थी and became a filer. I was filer since a long time, but at that time I used to submit a declaration that I'm a non-resident Pakistani, and then when I moved to Pakistan, I was supposed to submit my first tax return. और एक lawyer के through, एक जानने वाले lawyer के through मैंने जैसे mostly हमारे पास पाकिस्तान में लोग जमा करवाते हैं कि किसी का भाई का जानने वाला है, कोई किसी का जानने वाला है. मैंने भी एक इसी तरह एक friends of friend को अपनी टैक्स रिटर्न का सबमिट करने का काम दिया एंड ही सबमिटेड माय टैक्स रिटर्न बट इट वाज अ डिज़ास्टर लेटर ऑन एंड आई रियलाइज़ कि उसने मेरे बहुत सारी मिस्टेक्स उसके अंदर की है. इनकम के सेगमेंट्स के अंदर फेक फिगर्स प्लस ये कि एसेट्स वगैरह के अंदर बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस थे. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि व्हेन आई केम टू नो और यू कैन से दैट आई आल्सो रियलाइज्ड आफ्टर दिस सफरिंग दैट टैक्सेशन इज़ नॉट अ जॉब ऑफ अ टैक्सेशन लॉयर, इट इज़ आल्सो अ जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट, ताकि अकाउंटेंट आपकी टैक्स रिटर्न्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा हो. एंड देन ऑफ कोर्स इफ़ देयर इज़ एनी नोटिस और इफ़ यू want to incorporate a company or do other things or do contracts, of course that is a job of a lawyer. But talking about the fact कि पाकिस्तान में ये सारा काम lawyer संभाल रहे हैं, that's when TaxNerd came in. Under the umbrella of TaxNerd, we do have taxation lawyers, we do have accountants, and we do have chartered accountants too on board, जो आपकी tax return को as per the needs जिस person से concerned होती है, जिस professional से concerned होती है, वहाँ से आपकी tax returns वगैरह submit हो रही होती हैं. Okay, so it really addresses a very important area of filing the tax returns, but it comprises 2 entirely different fields. First, it comprises AI, and second, it is about the accountancy and the taxation and the chartered accountants, etc. So, as per your educational background, are you from an accountancy academic background or you're from tech background? No, well, I'm not from an accountancy background, neither from a tech background. I was actually working as CEO for a company which was working for Saudi Aramco. I was a trainer over there. And the second thing, talking about the educational background, to be specific, I believe a CEO's education doesn't really matter because he can hire all the talents which he requires to fulfill a job. As in, if I want a chartered accountant, I can simply hire them. So, talking about myself, to be honest, I'm a college dropped out. But again, we can hire whoever I want, and the CEO's main job is to look after the growth of the business or to see the important aspects of the business, not necessary to be a graduate or a master's. So how did you really transition from an idea to bridging this gap to actual manifestation of the tax nerd? Well, very first thing when I realized this, the actual problem which was कि पाकिस्तान में taxation or पाकिस्तान में taxation is in wrong hands or the actual concerned persons are not professionals are not doing the job. At that time, I came up with an idea about tax education first. For the tax education part, we have been working on AI chatbots ताकि आप पाकिस्तान में जो 70 से ज़्यादा different किस्म के taxes हैं जिनको 35 से ज़्यादा agencies cover कर रही हैं या manage कर रही हैं, उन सब के बारे में एक आम बंदा तो of course नहीं जान सकता until unless कि एक specific tax के बारे में the education is provided through a channel. And we made that channel up by using AI, the first AI chatbot in Pakistan which is able to give you information on all the taxations and all the taxation rates, plus if they are manageable or if they are addressable in future or not, or if they can be claimed or not. So we did it through AI. Secondly, talking about the transition, once you have a USP, a lot of people will join you, a lot of different clients will be there, words of mouth will be there if you are providing a professionally providing a good relation to the customers.
things moves really very fast. All right, all right. Talking it more about entrepreneurship. जब entrepreneurship की हम बात करते हैं तो there can be so many barriers in taxation. So can you tell us how can we create a more supportive framework for taxation for startups particularly? Well, very true कि taxation is a very big barrier in Pakistan ecosystem of or it is a big barrier in the for the startups. टॉकिंग अबाउट कि हम लोग इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट इज़ एक्चुअली इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट कि वो टैक्सेशन कम से कम स्टार्टअप्स के लिए टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करे. Plus we do have, as I told earlier, we do have 70 different kind of taxes for individuals and the businesses or small and medium enterprises or the startups. So एक startup के लिए navigation through all these different kind of taxes is really very tough. What happens is कि mostly startup owners को या mostly entrepreneurs को या mostly जो small and medium enterprises के owners हैं including them, उनको भी idea नहीं होता वो किस किस तरह के taxes कहाँ कहाँ पे pay कर रहे हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग टैक्स एजुकेशन जिस कदर हम लोग दे सकते हैं वो तो हम लोग दे रहे होते हैं. वी आल्सो हैव ऑलरेडी डेवलप्ड द एआई बोर्ड जिसका पर्पज़ सिर्फ टैक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना है. बट आई बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड बी पेइंग सम स्पेशल अटेंशन टू द स्टार्टअप सो दैट उनके टैक्सेशन सिंप्लीफाई कर दें, या फिर उनके लिए आप कह लें कि देर शुड बी सम एग्जाम्पशंस फ्राम टैक्सेस, विद होल्डिंग के ऊपर एग्जाम्पशंस दी जा सकती है ताकि एटलीस्ट दे विल ग्रो. और जिस तरह उनकी एक स्टार्टअप की ग्रोथ जिस तरह हो रही होती है उसी तरह से आपकी सोसाइटी के अंदर से प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो रही होती हैं. सो इट इज़ कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट आई बिलीव. Okay, apart from the reforms on governmental level, are there any advices on financial literacy that you want to give to the startups? Well, financial literacy to startups, हमारे पास जितने डिफरेंट काइंड के टैक्सेस हैं हम लोग तो उनके नाम भी याद नहीं रख सकते. सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमारे पास लाइक ओवरऑल इन आवर सोसाइटी आई बिलीव कि हम लोग डेली बेसिस के ऊपर हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हैं. लाइक इवन इफ़ वी आर गोइंग टू बाय अ सोप और मे बी हम लोग कहीं पे कुछ खाने चले गए हैं, किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे चले गए, कोई शॉपिंग कर ली, हम लोग टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस इज़ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो वापस आते हैं. समटाइम्स दे इवन कंफ्यूज सेल्स टैक्स विद द इनकम टैक्स के कौन से टैक्सेस जो हैं वो इनकम जो एडजस्ट हो सकते हैं आपकी सालाना टैक्स रिटर्न्स के अंदर, और कौन से टैक्सेस एडजस्ट नहीं हो सकते. और वहाँ अभी तक तो हमारे लोगों के अंदर इस बारे में भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है. सो फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे पास काफ़ी कम है बिकॉज अभी तक लोगों को ये भी आइडिया नहीं हुआ कि फाइलर नॉन फाइलर का, चलो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अनाउंस करके लोगों तक अपनी बात तो डिलीवर कर दी है, बट इन दी एंड कौन कौन से टैक्सेस उन्होंने क्लेम करने, कौन से टैक्सेस नहीं क्लेम करने, ये सारी चीज़ें अभी तक पेंडिंग के ऊपर ही चल रही हैं. एंड वी आर फार अवे फ्राम फाइनेंशियल लिटरेसी एज इन व्हेन वी आर सिटिंग विद द गुड बिजनेस मैन और जो ऑलरेडी अपने बिजनेस के अंदर नाम कमा चुके हुए हैं या काम कर रहे हैं बिजनेस मैन है काफ़ी टाइम से. दे हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स आफ्टर द एक्सपीरियंस, बट फॉर द beginners it's really very tough. Okay, so as a judge you have judged so many startups in different platforms and different competitions, तो ऐसा कोई ट्रेंड है जो आप देखते हैं most of the startups are following? वेल ऐसे ट्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन सबसे बड़ा ट्रेंड जिसको मुझे लगता है कि लोग फॉलो कर रहे हैं वो यही है कि वो दूसरे स्टार्टअप की कॉपी कर लेते हैं, या एक आइडिया वो किसी और मार्केट से उठा के, या फिर समटाइम्स अपने फेलो कम्पिटिटर्स लाइक अपने दोस्तों से ही उठा के एक आइडिया को कॉपी करके दोबारा से प्रेजेंट कर रहे होते हैं एज देयर ओन स्टार्टअप. आई रियली बिलीव कि पाकिस्तानी स्टार्टअप सिस्टम के अंदर जो न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं दे शुड बी मोर फोकस्ड ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स rather than being a startup owner. लाइक सिर्फ फ्लैक्स करने के लिए एक स्टार्टअप ओनर या एंटरप्रेन्योर बनने के बजाय वो किसी सीरियस इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के ऊपर काम करें. दे शुड बी मोर फोकस्ड ऑन रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप्स हमारे पास बहुत कम आ रहे होते हैं. आई बिलीव 3 out of 10 में भी जो स्टार्टअप्स होंगे वो रिसर्च बेस्ड होंगे, या जो अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट जो हमारे लिए यूज़फुल हो, या कोई ऐसी सर्विस या फिर कोई ऐसी सॉफ्टवेयर के साथ आ रहे होते हैं जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है. वरना अक्सर स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये भी देखने में आया है कि उबर और क्रीम की कॉपीज़ आज तक आ रही है मार्केट में. सो इट्स रियली आई वुड से कि वी हैव टू बी मोर फोकस्ड. अगर हम लोग इसको कंपेयर भी करते हैं इंडिया से या सिंगापुर के स्टार्टअप इको सिस्टम से, तो वहाँ पे डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, इवन लाइक जाइंट स्टार्टअप्स हैं. ओवर हियर इन आवर सिनारियोज इट इज़ डिफरेंट अंटिल नाउ. Okay, and apart from this, apart from the background and research work, is there any advice जो कि आप देना चाहते हैं startup founders को to improve or to work more on their sales pitch? Talking about their page decks specifically, I believe that it should be completely the truth which you are experiencing. देखें जब भी आप किसी को अपना pitch deck दे रहे होते हैं तो at that time you are expecting something from them, like maybe you are looking for some investment, maybe you are looking for mentorship, maybe you are looking for like you should be very clear about what you are looking for, where you are standing.
ताकि अगले बंदे को आपके इन्वेस्टर को या पोटेंशियल इन्वेस्टर को या फिर मे बी आपके जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसको आइडिया होना चाहिए कि हाउ दे आर गोइंग टू असिस्ट यू. Instead of just flexing about having a या startup. एग्जैक्टली सम मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ फ्लेक्सिंग. समटाइम्स वो जो है ना फेक ट्रांजेक्शंस भी शो होती हैं, समटाइम्स फेक रेवेन्यूज़ भी शो हो रहे होते हैं. जब ड्यू डिलिजेंस होती है तब पता लगता है कि जी सारा कुछ झूठ था. इट्स गुड समटाइम्स लाइक फ्लेक्स इज़ फाइन, बट इतना फ्लेक्स ना करें कि आपके फाइनेंशियल्स ना उसके साथ मैच हो रही हों. और कल को जिस तरह रिसेंटली शार्क टैंक के काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स को FBR की तरफ से नोटिस भी रिसीव हुए हैं. तो इट्स बेटर टू बी ट्रूथफुल रेदर देन रिग्रेटेटर. Very informative insights, I must say. तो मूविंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन अबाउट योर जर्नी एज अ जज, क्या आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? बिकॉज यू हैव बीन अ जज एट जिंदगी, यू हैव बीन अ जज एट सी पाकिस्तान एंड PITB एंड PNY, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Well, as a judge, I have seen very good startups too, but I have seen a lot of copycats too. तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि मेरा एक्सपीरियंस एज अ जज कैसा रहा, तो जहाँ पे मुझे एक तरफ बहुत बहुत अच्छे स्टार्टअप्स भी देखने को मिले, वहीं पे मुझे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी देखने को मिले जिनकी शायद आज हम में से किसी को ज़रूरत नहीं है. बट आई वुड से कि हमें यकीनी तौर पे अपने स्टार्टअप के सिस्टम के ऊपर या ख़ास तौर पे जो हमारे न्यू स्टार्टअप्स जो मार्केट में आ रहे हैं उनको डेफिनेटली अपने ऊपर मज़ीद काम करना चाहिए. देयर शुड कम अप विद एन अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रेदर देन बीइंग एबल टू सेल समथिंग. मतलब सिर्फ बेचने का नाम ही तो स्टार्टअप नहीं है. तो माशरे का कोई एक इशू जिसको सॉर्ट आउट करना है या जिसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, उसके ऊपर उनको मेजरली फोकस करना चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए. ओवरऑल द एक्सपीरियंस, टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस, इट वाज रियली वेरी गुड. आई हैव जज्ड सो मेनी स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स. काफ़ी रिमोट एरिया से बहुत अच्छे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं. सम हाउ अगर हम लोग कंपेयर करें अपने स्टार्टअप के सिस्टम को, टॉकिंग लाइक कंपेयरिंग इट टू इंडिया, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टार्टअप्स हैं. बट नाउ फाइनली आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, स्पेशली सिंस द शार्क टैंक इज़ हेयर इन पाकिस्तान टू, तो लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी ड्राइव आ रही है एंटरप्रेन्योर्स के अंदर. दे आर गोइंग टूवर्ड स्टार्टअप्स. कुछ फ्लेक्सिंग के लिए भी आ रही है बेशक, या फिर कुछ लोग वाकई कुछ लोगों के पास इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी. नाउ दे आर गेनिंग द नॉलेज आफ्टर सीइंग ऑल दिस शोज एंड आफ्टर ऑल दिस इवेंट्स जो भी पाकिस्तान में भी लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक अच्छे लेवल के ऊपर इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज हुए हैं. लाइक सी पाकिस्तान वाज वन ऑफ दोज इवेंट्स जहाँ पे पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया. PNY also have recently introduce their startup competition. NIC is also playing a very good role Ignite के अंडर. अगर हम लोग मूविंग फॉरवर्ड, PITB ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले करा है इंक्यूबेशन के तौर पे. तो नाउ आफ्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली पाकिस्तान के अंदर ये ड्राइव आई. एंड आई एम एक्चुअली रियली वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत अच्छे स्टार्टअप्स होंगे. ना सिर्फ पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स जो सॉल्व कर रहे होंगे, बल्कि इंटरनेशनली दे विल बी क्लेम्ड इंशाल्लाह ताला. Okay, to sum it up, every startup has to solve a problem. Every startup has to be an entrepreneurial venture, right? वेरी ट्रू. आई बिलीव मसला ये है कि हमारे पास तो पाकिस्तान में हर बंदा यही कह रहा होता है कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, बट इन द एंड व्हेन वी गेट टू नो अबाउट देम मे बी दे आर डूइंग समथिंग विच एवरी सेकंड पर्सन इज डूइंग इन पाकिस्तान. तो स्टार्टअप की लाइक एक न्यू बिजनेस या एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की और स्टार्टअप के बीच में एक बहुत ही फाइन लाइन मौजूद है जिसको हम लोग मोस्टली इग्नोर कर देते होते हैं. आई बिलीव इज़ कि अगर कोई कहता है कि वो स्टार्टअप है, ही दे मस्ट बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी विच वॉज नॉट सॉल्व्ड बिफोर, एटलीस्ट नॉट इन पाकिस्तान या एटलीस्ट नॉट इन योर टेरिटरी इट वाज सॉल्व्ड बिफोर. तो बाकी इसके अलावा सारे बिजनेसेस ही होते हैं. और आई बिलीव कि अगर कोई एक स्टार्टअप कॉपी करता है तो दूसरा स्टार्टअप ऑटोमेटिकली एक बिजनेस बन जाता है. स्टार्टअप वही होता है जिसने प्रॉब्लम सॉल्व की होती है. Okay, and now let's talk about your startup. How can platforms like TaxNerd or tax-focused platform, I must say, can support or promote incubators or accelerators or co-working spaces and all? Well, very first thing is that as TaxNet or as a tax tech or fintech startup, we do have a data of a lot of people. So, if we are an outreach partner for some of the events, or if we are outreach partner for such an accelerators, हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों तक आपकी बात भी पहुंचा सकते हैं. प्लस देर इज़ अनदर थिंग विच इज़ कि वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद मैनी इंक्यूबेशन सेंटर्स. वी आर गिविंग लाइक हम लोग वीकली और मंथली बेसिस पे वहाँ पे जाके ट्रेनिंग्स भी दे रहे होते हैं अबाउट द फाइनेंसेस, अबाउट द टैक्सेशन अवेयरनेस, अबाउट IPs. सम ऑफ माई टीम मेंबर आर ऑल्सो वर्किंग ऑन पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, और उसके बारे में उसकी ज़रूरत के बारे में भी हम लोग जो है ट्रेन कर रहे होते हैं टू द स्टार्टअप ओनर्स. तो आई बिलीव दिस इज़ अ रोल विच एवरी टैक्स टेक और फिनटेक मस्ट प्ले, सो दैट फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसके अंदर एक तो इजाफा भी होगा. प्लस ये कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स किस्म का एक टैक्सेशन सिस्टम है उसके बारे में स्टार्टअप्स के पास नॉलेज भी होगी. एंड आई बिलीव एवरी बिजनेस ओनर, नॉट ओनली स्टार्टअप ओनर या फिर स्मॉल एंड मीडियम प्राइस ओनर, एवरी बिजनेस ओनर शुड नो अबाउट द टैक्सेशंस
इन दी एंड टैक्स प्लानिंग इज ऑल्सो समथिंग विच एक्चुअली सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी. तो अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं, अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको टैक्स प्लानिंग की साइड पे जाना ही पड़ेगा. और टैक्स प्लानिंग के लिए जाने के लिए इधर आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे. अगर आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं भी हायर करते, सम हाउ कुछ ना कुछ आपको खुद भी पता होना चाहिए. तो आई बिलीव टैक्स एजुकेशन, इसके अलावा आई बिलीव कि अवेयरनेस के ऊपर काम किया जा सकता है, बुक कीपिंग के ऊपर काम किया जा सकता है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स वगैरह दी जा सकती हैं. तो इट शुड बी देयर. एंड टैक्स टेक और फिनटेक सॉल्यूशंस या फिर टैक्सेशन के अंदर सॉल्यूशंस जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दे डू हैव अ वेरी मेजर रोल विच कैन बी प्लेड. जो इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ, एक्सीलेटर्स के साथ या फिर यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी दे कैन बी अलाइन टू देम. टैक्स एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली वैसे ही पाकिस्तानी मार्केट में एक बहुत बड़ा अनटैप्ड एरिया है. वेल इट इज़, हमारे पास मोस्टली टैक्स एजुकेशन वही होती है जो हम लोग रील्स में देख रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके अंदर भी क्वालिटी कंटेंट नहीं है. और वी आर ट्राइंग कि हम लोग कुछ बनाएं उसके ऊपर. विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टू. Okay, and continuing this conversation, यहीं से आगे, can you tell us what was your why behind your company TaxNerd? Well, the why behind TaxNet was very simple. Why taxes cannot be easy for everyone. When I landed in Pakistan, my beloved country, the very first thing which I came to know was हमारे पास different तरह के, हर तरह के different taxes हैं जो हमने पे करने हैं. अब इनिशियली तो मुझे नाम भी बहुत अजीब लग रहे थे कि लाइक टोकन टैक्स है आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स है, सेल्स टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, इनकम टैक्स है, बेतहाशा डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस जिनके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना था सिंस आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सऊदी अरेबिया. सो आई वाज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ ऑल दिस डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस अंटिल 2015 और 16 जब वहाँ पे इकलौता टैक्स आया था विच वाज वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, जो हर सर्विस के ऊपर चार्ज होता था. So when I moved to Pakistan, it was not long after that, after the Saudi Arabia introduced VAT. यहाँ पे different types के taxes देख के I was literally confused about them कि इनमें से कौन से adjustable होंगे, कौन से adjustable नहीं होंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या पे कर रहे होते हैं, हमें कोई भी idea नहीं होता. So then I came up with my why, that why I founded TaxNet was that why taxes cannot be easy for everyone. And this was also featured in Folklore magazine recently. Yes, it was recently featured in Folklore magazine too. Thank you so much. Your motive behind TaxNerd is interesting. अब हम बात करते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट के बारे में. TaxNerd का USP क्या है? Can you share that? Yes, I would love to share that, and in fact, I share it so many times a day that fingertips पे याद भी हो चुका हुआ है. Back to the point, TaxNet is one window solution provider. Talking about the daily business necessities for a startup or for a small and medium enterprises. You might be looking for business incorporation, you might be looking for filing your tax returns. आपको सेल्स टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने की ज़रूरत भी पड़ती है. ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट्स वगैरह भी आप करवाते हैं. अगर आप एक आईटी कंपनी है, पीएससीबी के साथ आपकी रजिस्ट्रेशंस वगैरह भी होनी होती हैं. इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस भी रिक्वायर्ड है आपको. We at TaxNet are providing all these services at one single point. एज इन के आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सेपरेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है. आपको किसी एक जूनियर अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सर्विसेज. यू डोंट हैव टू गो टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट. वी आर प्रोवाइडिंग ऑल these services under one window. Not only that, in case if you want to expand your business in USA, Saudi Arabia, UAE or Bahrain market, we do have the solutions over there too. So since we became the one window solution provider, a lot of businesses put their trust in us, and they love working with us because of उनको किसी और बंदे की हैसल like they simply have to email us or they simply have to take out their phone और उन्होंने हमसे रब्ता करना है. उनकी सारी problems उसी एक जगह पे sort out हो रही हैं. That is not only our USP but also that gave us a lot of benefits in talking about sales revenue या फिर upselling की अगर आप बात कर लें, they gave us a lot of opportunities over here. Yeah. Okay, as a one window solution provider, are there any success stories जो आप share कर सकते हैं हमारे viewers के We साथ? do have a lot of success stories alhamdulillah, and starting from a lot of different clients के हम लोग बात करेंगे. We have converted so many freelancers into agencies and that's I believe कि हमारी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है. नॉट ओनली दैट, PITB या फिर जो हमारे पास PSEB भी इस पर काफ़ी जोर डालता रहा है. काफ़ी सारे मज़ीद इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इसके ऊपर काम करते रहे हैं, इंक्लूडिंग हामिद महमूद. ही इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन द सिमिलर सिनारियो कि जहाँ पे वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीलांसर्स अपनी एजेंसीज़ के साथ आएँ ताकि एज अ नेशन वी विल बी एबल टू डू समथिंग और टू अचीव समथिंग. We actually make that happen. We made that happen by providing the solutions to all these people. Like जो freelancers जिन्होंने आज तक टैक्स रिटर्न्स नहीं जमा करवाई हुई थी, आज उन्होंने अपनी पूरी फुल फ्लैश कंपनीज बना के हायरिंग्स भी की हुई हैं. सो इट इज़ सिंपल एज दैट के
आप अपना बिज़नेस की ग्रोथ देखें, आप अपने जो अपनी हायरिंग्स वगैरह देखें, अपनी फायरिंग्स देखें, या अपने बाकी मामलात अपनी सेल्स वगैरह के ऊपर फोकस कर रखें। टॉकिंग अबाउट ऑल द अदर थिंग्स, जो आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं आपके ऊपर, अकाउंटिंग बुक कीपिंग की जो सर्विसेज वगैरह रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर देंगे आपके बिहाफ पे। सो दैट बिकेम अ सक्सेस स्टोरी फॉर सो मैनी कंपनीज, लाइक आई रियली कैन नॉट नेम देम ऑल हियर। A significant failure that you faced in your life, in your journey. वेल, फेलियर इज़ टू बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड आई बिलीव कि एक सक्सेस स्टोरी बनाने के पीछे आपके पास काफ़ी सारी फेलियर स्टोरीज ज़रूर होती हैं. सो आई हैड अ लॉट ऑफ फेलियर्स, बट द बेस्ट failure I would say is the one when I found myself in a dark, you can say caught up in a dark room, कि जहाँ पे मेरे पास कोई आइडियाज़ ही नहीं आ रहे थे. और इधर इफ़ आई वॉज गेटिंग आइडियाज़, लाइक अगर मैं प्रोडक्ट डेवलप कर ली तो मुझे कोई सेल्स नहीं आ रही थी. सो फेलियर इज़, आई बिलीव देर फेलियर इज़ नॉट समथिंग कि हम लोग एक ही दफ़ा जो है ना फेल हो गए या एक पूरे प्रोजेक्ट के अंदर फेल हो जाए. फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ फॉर मी. कुछ चीज़ों के अंदर मैं फेल हो जाता हूँ, एज इन कि मैं इस पॉडकास्ट के टाइम पे ना पहुँच के फेल हो चुका था. सो ऑल दीज थिंग्स, स्मॉल थिंग्स बिकम इन द एंड मेक्स यू अ सक्सेसफुल पर्सन. Failures are really important and they give you very good lessons. And failures, in fact, are a stepping stone, right? Really believe that. All right, all right. अब मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रही हूँ जो कि एज बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ HR, तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है. वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? सो वेयर डू यू सी टैक्स नर्ड इन 5 years? Where do I see TaxNet in 5 years is the leader of taxation in Pakistan, and not only in Pakistan, moving forward to USA and UK, other countries too. We are already incorporated in USA, by the way. Plus ये कि हम लोग developing and automating the process of LLC incorporations not only in Pakistan but also in USA and UK. So where do I see myself, or I see my company in the next 5 years, is to be a globally known leader of taxation and business incorporations, or the expansions of your businesses in other countries. Okay, so is it going to be the last step or the peak of TaxNet, or is there any different ultimate goal? वेल, आई बिलीव जैसे एक इंसान की कोई पीक नहीं होती अनटिल अनलेस कि वो ख़त्म हो जाए, दुनिया से वापसी का टाइम आ जाए, तब तक देर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न. द सेम वे, आ बिजनेस शुड नेवर रीच इट्स पीक बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल for the expansions of your operations and some new markets or untapped markets which शायद हमें कुछ मिल सकती हैं. I really cannot say anything about that कि it will be the peak or it will be just a starter of the next peak. And one final piece of advice for the viewers or for startups in Pakistan? Well, I would say कि do something, find some new options, find some new markets, find some glitches, find some new problems, or find some really big problems. I believe it is really the time कि हम लोग पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करें. वी आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट इन ऑल दिस सिनारियोज. IT के अंदर हमने बहुत अच्छा काम कर चुके हुए हैं. ऑफ कोर्स इट्स ये सब हम सब की एक मिली हुई काविश थी. जितने भी हमारे IT के लोग हैं, जो भी IT की कंपनीज वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उन सब ने मिल के ही ये पाकिस्तान का नाम इतना ऊपर किया. बट देर इज़ स्टिल अ लॉट टू डू. आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द स्टार्टअप्स टू, कि हमारे स्टार्टअप्स भी कुछ ऐसी यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ या यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ आएँ, विच इन द एंड कैन प्ले अ वाइटल रोल इन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली इन पाकिस्तान. वी हैव टू ओपन अप, वी हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स नाउ. इट इज़ द राइट टाइम कि जब हमारे पास अवेयरनेस भी आ रही है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों स्टार्टअप के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं. सो वाई नॉट थिंक बिग. Very motivating. Thank you so much for this very much insightful conversation. Now we will move to the last round of this podcast, that is the rapid fire and one of my favorites. What's your favorite productivity hack? Sleep well before the next day. One book or podcast you recommend to entrepreneurs? My own podcast. Your go-to tool for managing your team or tasks? I prefer doing it over WhatsApp, but we still have some, like we are using Zoho Vision too. Do you prefer working alone or in a team? We have to work in a team. The best piece of advice you have ever received? Lage raho. And what's a quote or mantra you live by? Be the change you want to see in the world. That's it. Thank you so much once again. This has been very interesting and exciting conversation with you so far. Thank you so much, Hadika. And to our listeners, thank you so much for tuning in. Once again, don't forget to like, subscribe, and share with your circle. I'm your host, Hadika Bukhari. Until next time, bye.